Good morning, student of class 3. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, student, I am teaching you chapter number 15, means of communication, and today date is 17. So, let take out your book, open page number 78. Okay, take out your book, open page number 78 and take one rough copy also, so that you can note down the important points, and if there is any doubt you can ask me in online doubt session classes. Okay, so see student, what is the method of sending and receiving messages are known as means of communication. For example, how we communicate with each other, we speak or someone is speaking, then at that time what we are doing, we are listening at that time. Okay, and if you are reading or if you write letter to someone and that person read your letter and response, this is also mean of communication. ये भी बेटा क्या है, मीन ऑफ कम्युनिकेशन है. ठीक है, वी डेली इन आवर डे टू डे लाइफ वी टॉक टू many persons, our family members, our friends, relatives, and sometime with the strangers. strangers means अजनबी लोग जिसे हम पहले से नहीं जानते हैं. ठीक है, उन्हें strangers बोलते हैं. ठीक है, so when we are speaking, listening, read or write to someone, so what is this? It means student, we are communicating with the person. ठीक है, so this is their mean of communication. जब हम किसी से बोलते हैं या किसी की बात सुनते हैं, ठीक है, रीड करते हैं या राइट करते हैं, so with it means this is the method of communicating with other person. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ स्पीक करके और लिसन करके ही कम्युनिकेट कर सकते हो. ठीक है, आप रीड राइट करके भी कम्युनिकेट कर सकते हो. इज इट क्लियर? सो दिस इज मीन ऑफ कम्युनिकेशन. सो let revise what we have done in our previous video and then we will continue with the postal communication services. Okay, so see student, now when we are talking about the present time, so the world has become very small. We can talk to any person or we can talk to our friends, relatives, whether they are living in any part of the country or even if they are living in some other countries. This thing I am talking about present time. Okay, क्योंकि आज क्या है, due to advanced technology life has become very comfortable. एडवांस टेक्नोलॉजी होने की वजह से हमारी लाइफ क्या है बेटा, बहुत कंफर्टेबल हो गई है. ऐसा ओल्ड टाइम में नहीं था. इज इट क्लियर? नाउ सी, यू कैन टॉक विद योर फोन, और फोन से भी एडवांस टेक्नोलॉजी क्या आ गई, मोबाइल फोन. यू कैन कैरी मोबाइल फोन विद यू while you are moving or sleeping or sitting on the chair, so you can carry mobile phone with you also. ठीक है, so student, this is the most advanced technology. What? That is your mobile phone. In mobile phone you can do chatting, you can send messages, you can do send email also, you can do video calling also, in which you can see the face of the person
to whom which you are talking. So these now in present time they are due to advanced technology, the means of communication, due to this means of communication, that is the reason it is given in the book. Now the world has become very small. So but student, these things are not happen in the ancient time. Ancient time means we are talking about many years ago. ठीक है, जब अर्ली ह्यूमन बींग्स होंगे तब चीजें इतनी कंफर्टेबल नहीं थी. इज इट क्लियर? सो इन एंशियंट टाइम पीपल सेंड मैसेजेस, उनके बहुत ओल्ड मेथड थे. ड्रम बीट करते थे विद द हेल्प ऑफ द बर्ड लाइक पिजन एंड इवन मैसेंजर्स और स्मोक. ठीक है, किसी चीज को जला के जो धुआं निकलता है इससे भी एक दूसरे को मैसेज दिया करते थे. ठीक है. सो बट नाउ इन प्रेजेंट टाइम की बात करें तो दीज थिंग्स आर due to advanced technology, the life become very easier and more comfortable than the ancient time. अब देखो, now we are discussing gradually people learn language and begun to write. ठीक है. so writing soon become an important form of a communication. अब देखो, हम लोग ओल्ड टाइम से न्यू टाइम की ओर आ रहे हैं. पहले हमने न्यू टाइम में डिस्कस कर लिया, ओल्ड टाइम में भी डिस्कस कर लिया. नाउ हाउ द चेंजेस हैपन. अब चेंजेस बेटा कैसे कैसे हुई, ये स्लोली हम लोग अब ओल्ड से न्यू की ओर आएंगे. ठीक है. ऐसे तो हमने दोनों चीज का डिस्कशन कर लिया कि ओल्ड टाइम में विद द ड्रम बीट एंड विद द हेल्प ऑफ द बर्ड्स आल्सो लाइक पिजन्स है, इवन मैसेंजर्स आर यूज्ड और स्मोक. दीज आर द थिंग्स विच आर यूज्ड इन द एंशियंट टाइम. ठीक है. This is the method of sending the messages to each other. Okay. Now when the time change, so now how the time change from the old time we will come to the present time. अब old की तरफ से बेटा हम present की ओर आएंगे. ठीक है. So when the people learn the languages, ठीक है, जब पीपल्स को लैंग्वेज बोलने आ गई एंड दे आर एबल टू राइट इट, देन व्हाट्स हैपन, राइटिंग सून बिकम एन इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ ए कम्युनिकेशन. पीपल स्टार्टेड राइटिंग लेटर टू देयर फार अवे फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड. देखो, ओल्ड टाइम से अब न्यू टाइम की ओर आ रहे हैं. पहले मे बी वो लोग टॉक करते थे. ठीक है. या इस तरह के सिंबल्स जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ड्रम बीट्स है, पिजन्स है, मैसेंजर्स है, स्मोक, दिस टाइप्स ऑफ ए they do to send messages to each other. But when they learn to speak the language and when they learn how to write a language, तो उस समय सोचो ओल्ड टाइम में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बन गया. वाई? बिकॉज नाउ दे आर एबल टू. अब देखो, हम बात किससे कर सकते हैं. ठीक है. अगर आप और हम आमने सामने, मैं ओल्ड टाइम की बात कर रहा हूँ. आई एम नॉट दिस टाइम आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टेलीफोन्स, मोबाइल फोन्स, ईमेल्स, ये सब की बात नहीं कर रहा हूँ. ठीक है. आप ये सोचो कि जब कभी ह्यूमन बींग्स को लैंग्वेज पे कंट्रोल आ गया, दे लर्न हाउ टू स्पीक लैंग्वेज एंड दे लर्न हाउ टू राइट इट. So at that time writing become a very important mean of communication. Why? Now they can communicate with their friends, relatives and any person who is far away from their house with the help of these letters. They start writing letter to their friends, relatives and other person. Okay. So जब कभी भी ऐसा बोल रहा है कि जब कभी भी ह्यूमन बींग्स को लैंग्वेज लर्न हो गई होगी, बोलना आ गया या लिखना आ गया, तो एट दैट टाइम राइटिंग बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मीन ऑफ कम्युनिकेशन. सो नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज पोस्टल कम्युनिकेशन. प्रेजेंट टाइम में अगर बेटा आप बात करोगे तो पोस्टल कम्युनिकेशन की बहुत सी सर्विसेज बंद हो चुकी हैं. जैसे पुराने समय में अर्जेंट मैसेजेस, if urgent message we have to send, then we
use telegrams. If you want to send money to some person, we are using money orders. लेकिन आज क्या है, इन प्रेजेंट में अगर आप बात करो तो बहुत सी पोस्टल सर्विसेज ऐसी हैं जो या तो टोटली क्लोज हो गई हैं या बहुत कम हो गई हैं. ठीक है, पहले लोग लेटर लिखा करते थे. ठीक है, बिकॉज दिस टाइप्स ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी इज नॉट देयर. ओके, सो दे राइट लेटर टू देयर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, एंड इन दिस मैनर दे कम्युनिकेट विद ईच अदर. ये मेथड से वो आपस में एक दूसरे से क्या कम्युनिकेट करते थे. लेकिन अब स्लोली ओल्ड से जब प्रेजेंट टाइम में आओगे, आज जैसे अभी जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, इनलैंड लेटर्स, पोस्ट कार्ड, स्टैम्प्ड एनवलप्स. सो अभी एक्चुअली अगर मैं क्लास में होता, अभी मैं पूछता बेटा कितनों ने इनलैंड लेटर देखा है, हार्डली 1 2 3 या 4 हाथ रेज होते. क्योंकि आप जो है प्रेजेंट टाइम में ये सब चीजें क्या है बहुत लेस हो गई हैं. कुछ तो पोस्टल कम्युनिकेशन वाली सर्विसेज मैंने आपको बताया ना, क्लोज भी हो गई हैं, क्योंकि बिकॉज टेक्नोलॉजी इज अ वेरी एडवांस. लेकिन हम ओल्ड टाइम से न्यू टाइम की ओर पढ़ रहे हैं. सो दैट इज द रीजन आई एम टेलिंग यू. इसलिए मैं तुम्हें ये चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं. इज इट क्लियर? क्लियर. पोस्ट कार्ड्स भेजा करते थे. ठीक है, अब देखो बहुत अब क्या, आप कोई भी कंपटीशन होता है, अगर आप मुझे वोटिंग करना चाहते हो तो आप टीवी पे भी देखते हो कोई ऐड. कोई भी कंपटीशन आता है, डांस का, सॉन्ग का, एनी कंपटीशन कम इन द या टीवी चैनल, देन हाउ दे प्लीज वोट फॉर अस and my number is that they display the number and you have to send the SMS. Whole technique is changed, but in the old time postcards is used for this purpose also. Okay, so these are the services which are available in the post office. ठीक है, ये सर्विसेज कहाँ अवेलेबल है बेटा? These services are available in the post office. Okay, now see student, the cheapest and most popular method of communication is by post. See, this is cheapest because very less, बहुत सस्ता है, इसमें ज्यादा मनी नहीं लगती, इसलिए इसे चीपेस्ट बोला गया है. एंड मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इज बाय पोस्ट इन ओल्ड डेज. ठीक है, प्रेजेंट टाइम में तो काफी कम हो गया, लेकिन ओल्ड डेज में ये सबसे चीपेस्ट था, सस्ता था. इज इट क्लियर? नाउ पीपल यूज इनलैंड लेटर, पोस्ट कार्ड एंड स्टैम्प्ड एनवलप्स टू सेंड मैसेजेस टू अदर. So what is the method of sending the messages? They use the inland letter. Okay, so it is a blue color letter. Okay, it is a blue color letter, and what you want to write, you write inside the letter, and after that you close the letter with the glue. ठीक है, with the glue you close the letter, and after that you put this letter in the letter box. वहां आप ड्रॉप कर देते थे. पोस्ट कार्ड also very small space for writing. Okay, very small space for writing, and again you post this into the post office box. उसमें आप ड्रॉप कर देते थे. And what is stamped envelope? In this, what's happened? You take one page of your copy and then you write letter. envelope मतलब समझते हो ना बेटा, लिफाफा होता है. ठीक है, इनलैंड लेटर क्या है, इसके आप ये पेज की तरह होता है. यू राइट योर मैटर इनसाइड दिस लेटर, एंड आफ्टर दैट ग्लू होती है उसे, आप उसे फोल्ड करके बंद कर दोगे. ये ओपन पेज होता है. ठीक है, उसी के साइड में ग्लू लगी रहती है, आप उसी से इसे क्लोज कर दोगे इसे. ठीक है, पोस्ट कार्ड होते हैं, स्मॉल इन साइज होता है. जैसे कार्ड आप लोग ने देखे ना, ग्रीटिंग कार्ड्स, बिल्कुल सिंपल सीधा 1 कार्ड होता है. ठीक है, सो दैट इज पोस्ट कार्ड. स्टैम्प एनवलप्स को समझे, एनवलप्स मींस होते हैं लिफाफे. सो हियर व्हाट इज दैट, यू टेक आउट द पेज ऑफ योर एनी कॉपी, यू राइट द लेटर, एंड आफ्टर दैट यू पुट दैट लेटर इनसाइड दिस एनवलप. इस एनवलप के अंदर हम लेटर को रख देते हैं, और फिर उस एनवलप को ग्लू से क्लोज कर देते हैं.
इतनी बात समझ आई। अब देखो लेटर्स में क्या क्या चीजें होनी चाहिए वो मैं अब बताऊंगा। तो लोग सोच रहे हो बस पहले ये बता दिया कि चीजें क्या होती हैं। इज इट क्लियर? अब देखो इनलाइन लेटर है। सो सी, तुम लोग को एक रफ डायग्राम बना के दिखाई देता हूं। ठीक है। सो दिस इज द स्पेस, दिस इज द इनलाइन लेटर। Why I draw this? This is the extra paper on which glue is applied. This dot one. Okay. This is a blue color page. Now inside this you will write the letter. Okay. You will write the letter inside this, and after that you fold it. Here see, and this portion is for the glue portion. Okay, you fold the letter. When you fold this letter it will come here, and this is extra page, and you with the help of a glue you fold it, and with the help of a glue you paste it. ठीक है, ग्लू से फिर उसे क्या कर देते हैं, चिपका देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। तो इस तरह आपका इनलैंड लेटर होता था, और ये ब्लू होता है, ब्लू कलर का होता है। कभी आप अपने पेरेंट्स के संग इफ यू गेट ए चांस देन विद योर पेरेंट्स यू गो टू द पोस्ट ऑफिस एंड आस्क फॉर द इनलैंड लेटर, देन यू विल सी दिस टाइप ऑफ ए लेटर इज इट। ओके, देन सी पोस्ट कार्ड्स। It's a small card. Okay, so here you will write the message which you want to write, and this space is for the address. This space is for the address, and on another side of the, ये तो मैं इसकी इस साइड दिखा रहा हूं जिधर एड्रेस है, और ये छोटा ही सा होता है। इसकी जो ऑपोजिट साइड है वहां भी आप लिख सकते हो, वहां भी आप क्या कर सकते हो, यू कैन राइट इट। इज इट क्लियर? सो दिस इज योर पोस्ट कार्ड। एंड इनवलप में, इनवलप आप लोग ने सबने लिफाफे देखे होंगे। सो वी टेक सिंगल पेज, हम एक पेज लेते हैं, वी राइट द लेटर ऑन दैट पेज, एंड आफ्टर दैट वी पुट दिस लेटर इनसाइड द इनवलप, एंड विद द हेल्प ऑफ ए ग्लू वी पेस्ट इट। ठीक है, उसे क्लोज कर देते हैं, चिपका देते हैं। इज इट क्लियर? So this is inland letter. Okay, and this is inland letter. This is inland letter, and it is blue in color. Blue in color. Postcard. This is postcard, and here there is a letter which you put inside the envelope. So see, when we are talking about the old time student, at the time when human beings learn the language and they know how to write it now, then at that time writing become a very important mean of communication. क्योंकि पहले क्या होता था, मैंने आप लोगों को बताया ड्रम बीट, पिजन ये सब यूज करते थे। जब राइटिंग करना आ गया, सो दे आल्सो एक तो मीन ऑफ कम्युनिकेशन मैंने क्या बताया, इफ आई एम स्पीकिंग यू आर लिसनिंग, you are speaking, I am listening, this is also one way of communication with us. Okay, and one method is reading and writing. Now when the peoples are able to write, then they start writing the letters, then they start writing the letters. So
the three facilities which are available in the post office for writing the letter, that is inland letter, blue in color, postcards. Okay, and see in this what you have written, no one will able to read it, क्योंकि मैंने बताया ना, ये देखो ये जो साइड है ये क्या है, here we apply the glue. So when you fold it in this manner, then from this glue आप इसे चिपका देते हो, तो आपने लेटर के अंदर क्या लिखा है किसी को नहीं पता चलेगा. In the same manner, here you write a letter in the page, and after that you put the page inside the envelope. No one can read the what you have written inside the letter. But postcard क्या है, postcard open होता है, ठीक है, ये किसी चीज के अंदर कवर नहीं होता है, ठीक है. What you are have written your matter, if someone want to read it he can read, ठीक है. ये क्लोज हो जा रहा है, this is also inside the envelope, but postcard is not, we are not putting inside the envelope or we are not folding it, it is just small card, एक स्मॉल कार्ड की तरह होता है, ठीक है. तो इफ यू राइट एनीथिंग इन दिस, दैट अदर पर्सन कैन आल्सो रीड इट, अदर पर्सन कैन आल्सो रीड इट. इज इट क्लियर? दैट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री लेटर्स. नाउ व्हाट हैपन व्हेन यू पोस्ट द लेटर इन द एनवलप्स. एनवलप्स में जब बेटा हम लोग लेटर पोस्ट करते हैं, ठीक है, व्हाइट एनवलप होते हैं या येलो कलर के, किसी भी एनवलप में आप जब लेटर पोस्ट करते हो तो उस पर स्टैंप लगती है, ठीक है. इट डिपेंड्स अपॉन द वेट, ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द वेट ऑफ द पेपर इनसाइड द एनवलप. एनवलप के अंदर जो आपने पेपर डाला है उसका वेट कितना होगा, द पोस्ट मास्टर विल टेल यू. वो स्टैम्प, छोटी छोटी स्टैम्प्स आती हैं, कभी भी आपको टाइम लगे मम्मी पापा को बोलिएगा पोस्ट ऑफिस ले जाके हमें स्टैम्प दिखाएं, ठीक है. सो उन स्टैम्प्स पे स्टैम्प्स मिलती है, 5 रुपीज की स्टैम्प्स मिलती है, 1 रुपीज की मिलती है, 2 रुपीज, 10 रुपीज, 20 रुपीज. दीज आर द स्टैम्प्स विच आर अवेलेबल इन द पोस्ट ऑफिस. सो आफ्टर दैट you put the letter inside the envelope and then you also paste the stamp. stamp भी चिपकाते हैं किस पे, envelope में, लेटर के अंदर नहीं, बाहर envelope पे, ठीक है. इज इट क्लियर? सो दिस, अब मैं बताता हूं मेथड. व्हाट इज द मेथड ऑफ सेंडिंग द लेटर, ये आपको मैंने बता दिया. एक स्मॉल रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं. इनलैंड लेटर, हाउ इज द इनलैंड लेटर, postcard, and after that I tell you one method of sending the letter. That letter is, after writing a letter you put the letter inside the envelope. This is the way of sending the letter. Now if you are sending letter to someone, then what are the important things which you have to mention, ठीक है, on the letter. अब आप किसी को बेटा लेटर भेज रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप क्या चीजें उसमें मेंशन करोगे. इज इट क्लियर? दैट आई टेल यू. सो when you are writing the letter student, the most important thing is that you must mention. आपको मेंशन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको एड्रेस मेंशन करना है. किस पे? लेटर पे. यू हैव टू मेंशन एड्रेस. ओके, सो आई हैव टू राइट द एड्रेस. मान लो सिंपल लेते हैं, आर्मी स्कूल का ही ले लेते हैं, ठीक है. आई हैव टू सेंड लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ आर्मी स्कूल, ठीक है. आर्मी स्कूल को अगर मान लो, चलो स्कूल छोड़ो, मान लो 2 फ्रेंड्स का ही नाम ले लेते हैं. एक मान लो अंकित नाम का बच्चा है और उसका फ्रेंड है, दिल्ली में रहता है, एंड ही वांट टू सेंड इन द लेटर, एंड अंकित इज इन 39 GTC. So what he will do, he will write the address Ankit Kumar, Ankit Singh. ये तो नाम हो गया,
अंकित सिंह 39 GTC। ओके, अब ये हो गया ना 39 GTC। देन वी हैव टू राइट द नेम ऑफ द प्लेस, वाराणसी। वाराणसी फ्रंट पे लाइंस दी रहती हैं, वहीं पे हम लोग एड्रेस लिखते हैं। अंकित सिंह 39 GTC, या तो ये कर देते हैं अंकित सिंह क्वार्टर नंबर 312/1 वाराणसी यूपी। ये देखो मैंने लिख दिया, ठीक है। अंकित सिंह है एंड क्वार्टर नंबर 3 इतने 139 GTC, बिकॉज वाराणसी इज अ बिग सिटी। यहाँ अगर पूरे वाराणसी में आप देखोगे तो बहुत से अंकित सिंह आपको मिल जाएंगे। सो लेटर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा एड्रेस मेंशन करना। व्हाट? एड्रेस मेंशन करना। इज इट क्लियर? सो अंकित सिंह क्वार्टर नंबर मैंने मेंशन कर दिया एंड ही इज फ्रॉम 39 GTC। तो अगर वाराणसी में आएगा, पोस्ट ऑफिस में लेटर आएगा तो 39 GTC तो एक ही है यहाँ, गोरखा ट्रेनिंग सेंटर। एंड अब हो सकता है 39 GTC में बहुत। सो स्टूडेंट, now maybe there are many Ankit Singh in 39 GTC. So here I mention the address that quarter number 312/1 in 39 GTC. City is Varanasi and it is in UP. And another important thing is that the pin code of that area. ठीक है, पिन कोड ऑफ दैट एरिया, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड दिस पिन कोड इज ऑफ 6 डिजिट्स। कितनी डिजिट्स होती हैं? 6 होती हैं। फॉर एग्जाम्पल पिन कोड आई हैव रिटन 221004। ओके, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि देखो बेटा कुछ किलोमीटर पे हर एरिया का पिन कोड नंबर क्या है, चेंज होता रहता है। ठीक है, ये जो पिन कोड रहता है ये एरियाज वाइज डिवाइडेड होता है। ठीक है, हर कुछ किलोमीटर पे पिन कोड चेंज होता रहता है। सो व्हेन योर लेटर रीच द पोस्ट ऑफिस, सो दे डायरेक्टली सी द पिन कोड। अच्छा, 221004 एंड दे आर डेली डूइंग दिस वर्क। वो पिन कोड से पहले क्या करते हैं, दे अकॉर्डिंग टू एरिया दे सेपरेट द लेटर्स। 224 मान लो 221004 39 GTC का है, सेपरेट कर लिया। 221002 DLW का है, अलग कर लिया। डायरेक्टली दे सी दिस पिन कोड एंड दे सेपरेट द लेटर्स एरिया वाइज। सो दीज आर द थिंग्स which are very important that you have to mention on the letter. And now the another thing is that after writing the whole address of the person to whom you want to send the letter, after that you write your own address also. You will write your own address also. Here you will write from Ankit Singh है तो from Anikesh Singh, okay, quarter number 42/44, and then from where, Delhi. Okay, so and pin code of Delhi also you will mention, pin code of Delhi. So you have to write the address of the person to whom you want to send the letter, and even you write your address also in the letter. So this is the whole method I told you student, in which we send the letter. Is it clear? Now next thing is that they post their letter in the letter box. And see student, I draw a picture of a letter box for you.
You can want to take a screenshot, तो screenshot ले सकते हो. These are the things which you have to mention on the letter. Now all of you draw a picture of a letter box. You also draw the picture of a letter box in which we drop our letter. So student, this is the picture of a letter box in which we drop our letter. Here you are seeing, here is a place where there is small lock. Okay, so at the fixed time, ठीक है, जब when the vehicle of post office come to take this letter, so before that they open the lock of this letter box, and from here, by opening this, from here they collect the letters inside the letter box. Is it clear, student? Okay, thank you.